तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी एक्सपर्ट टॉक सीरीज में। जैसे कि आप जानते हैं, सब मास्टरी के द्वारा ये एक्सपर्ट टॉक सीरीज जो शुरू की गई है, इसका मकसद है दैट देयर आर सो मेनी यंग प्रोफेशनल वर्किंग प्रोफेशनल्स इन द इंडस्ट्री, बट उन्हें मौका नहीं मिलता है कि जो एक्सपर्ट से डायरेक्टली लर्न करने का, सीखने का। एंड दैट्स द पर्पस व्हाई सब मास्टरी हैज स्टार्टेड दिस एक्सपर्ट टॉक सीरीज। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ जो हैं एक ऐसे एक्सपर्ट हैं और ऐसे मेंबर हैं और जिनके साथ मुझे भी काम करने का मौका मिला, जिनके साथ, और इनका जो है 30 वर्षों का अनुभव है इंडस्ट्री का, एंड टुडे ही इज इन द लीडरशिप रोल। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा, 30 ईयर एक्सपीरियंस सर आपका है। तो राजीव शर्मा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स अ लॉट, आपने जो है समय निकाला और आप इस एक्सपर्ट टॉक सीरीज में आए। सो आई एम सो थैंकफुल टू यू Sir, see, Arunji, see the journey. If you see that, as we discussed that in our age group, like you and me are there, and lot of other peoples, there is a different type of the experience which the people must have faced. Like we experienced the murder of two prime ministers. And one of the prime minister, Rajiv Gandhi, I personally, you can say, I touched him also. He was so close to me. He visited Rewadi. At that time, we went to listen his speech, and just I got a chance that I could able to touch him. And after that, even I changed the spelling of my name. Earlier it was R-A-J-I-V, but then I changed to R-A-J-I-V. Oh, so you were so influenced by our ex-prime Yes. minister. Yes, yes. I went to Haryana School Education Board and gave them affidavit and got the name on the 10th certificate like this. That's so nice, so great. So if you see from that time, we saw a lot of things like protest against reservation. Then came the Mandir and Masjid, the issue, demolition. When the demolition was there, I was in very sensitive city at that time in Meerut. So I saw that tense also, how much tension was whole city at that time. Then came the start of the professional journey from 92. At that time, it was the start of the economic liberalization reforms. So we experienced that how the various situations government and the private sector must have faced at that time. We were in JK Synthetics and every year on 2 or 3 occasions, plant used to be stopped because of the protest by the worker unions. Yes. And also, you will be surprised, there was a staff union also. Oh, really? In that organization. Excellent. And staff union was more aggressive than the worker unions for some of the matters. Yes. So we experienced that particular situations also. So I started my career from JK Synthetics, which was pioneer in the fiber production. Actually, all the man-made fiber which came in India, it is because of JK Synthetics. Whether it is nylon, polyester, acrylic, so and polypropylene, everything was bought by the JK Synthetics in India. Reliance came, I think, in 1983 or 84. So thereafter, 7 or 8 years in production, I was at a GET level, worked at engineer level, and then assistant manager level. But there were small shift activities were there. But you can say, of course, we were working in the shift, but overall in charge of that particular, you can say, department like that. And I was lucky enough that I got the support of my seniors in every organization I worked. After 7 or 8 years, I came to the non-wovens in 99. And that time it was the start of the use applications of the automotive non-wovens in a big way. So I got exposure in supplying to various automotives. Almost all the automotive companies we have supplied through various companies in which I worked, like Uni Products, which were tier 1 supplier, Bajaj Carpet. I came to Bharat Seats also in R&D. So worked in multiple departments. Yes, I worked in quality, production, and R&D. Then I went to one more company in Bhiwani, and there basically we did a lot of the projects. I will say that even most of the professional does not get that opportunity
at such an early stage of their careers. I think more than 100 crores of the machineries we purchased from Europe, China, Korea, Taiwan, and second-hand machineries, new machineries. And most of these were single-handed purchase. Only the owner of the company and me, because there was no bigger hierarchy in those companies. So of course consultations were done with the other people also, but most of the things were decided by 2 or 3 people in the organization. They were not much big organization, but that gave a lot of exposures. So in the operations level, you see the quality, production, projects, and in various scales, and almost all the levels which can be possible in an organization, in private organization, I have worked on all these levels. But one thing which I will say that you work at any of the levels. Only thing is that do not consider that your responsibilities are limited. Authorities may be limited in different companies and at different levels, but responsibilities are not limited. Of course, they may be defined in your KRAs, maybe somewhere other success factor like of the things. Of course, they will be defined in words, but do not just limit yourself to those words. There are certain expectations your senior may be having from you, but you will have to see what is your expectations from yourself, from the work. Because one thing is sure is that in the industry, you cannot satisfy others. Only thing you can gauge whether you are satisfied with your performance or not. True. There is no limit to the satisfaction of others, but you can see yourself whether you are satisfied or not from your work. You just keep on gauging that, and accordingly you try to do the things. So you say that when you worked, like you rose to like at a very young age, I believe. At what age you become plant head? I think at the age of, at what See, experience? that is also a different story. I started my career from JK Synthetics. At that time, I was 20.5. Okay, So very young age. not eligible to do the job. So their HR head at that time, Mr. VK Sharma, he came in the campus. When he checked the certificate, he told you are not eligible for the job because you are 20.5 at this time. We cannot take lesser than 21. Really? So I told him, okay, but after 6 months when probation will end, I will be 21. So then he told, okay, yes, that makes sense. You did your sir qualification from which college, sir? You did, I think, diploma or? Yeah, I did BTech from BTech. TIT Bhiwani in TIT textile Bhiwani. technology. Oh, textile. Yes, That's good. textile. Then I did diploma in finance from IGNO. Then I did MBA also from IGNO. So one thing is very good, like you are actually always trying to increase your competence and your qualification. And Yes. what one thing you said that I think when you had 21 years of experience, you became plant head. Yes, at I was plant head at the age of, you can say, 17. That's 17 after 17 years of experience, I was plant in 2009. Well, less year of experience. What do you say? Like I think now what we have seen that earlier people used to think that to become plant head, like you need to have 30 years of experience or 25 years of experience. So that was the kind of thinking. But as you said that with just a 17 years of experience, you become plant head. And now we have seen nowadays in industry, what is required? Kya chahiye aapko? It's not that number of years of experience, that 20, 25, 30 years of experience. What is required is that if you have that competence, if you have that guts, and if you have that knowledge, then you are then eligible for that. So at such a young age, sir, you become plant head. So definitely, we'd like to know that like have you thought that you will become plant head ever? You have thought at that time from the beginning? Like there are so many people who are watching this interview, you'll be watching this. So what do you think? Like no, I never thought at that early stage that I will be a plant head. But one thing was sure, that whether I was engineer or then made you can say assistant manager, or I was a quality head, but I was involved in almost all type of the activities. So even up to the top level of that particular organization, wherever I worked,
I was recognized that there is one person who is working beyond his, you can say, area of working. So, like Yes. when I was in JK Synthetics, Mhm. I was in twisting section, and there was a polyester spinning section, which is called the POI, partially oriented yarn manufacturing section. So my overall interest was to go into the POI section. Mm. One thing happened that so many engineers from the POI section, they went to the JBA filament, which is in, I think, near Silvassa. So all of a sudden there was no person over there who could work in the shift and come. So what I decided, I took the initiative that for 8 hours I used to work in my section, which was twisting section, and next 8 hours I used to work in the spinning section, Oh and my God. without getting any compensatory off and other things. You yourself, took initiative. You said that nowadays Yes, you yes, see young engineers, they will say, okay, I'm working 10 hours, 12 hours a day. And sometimes, yes, I think it's not appropriate from the company side, but you at that young age, you said that, okay, I want to learn this and I'm okay without any compensation. I'm ready to learn. बिना किसी yes, yes. compensation के मैं तैयार हूँ. And you did 2 shift in the same company. 2 shift, and later on for about, you can say, around 1 month I worked like this, because before being transferred to the spinning section, my friends were there in the spinning section. So after doing 8 hours duty in my section, I used to stay with them for the further 4 hours. So That's it good. was just a normal phenomena to work for 12 hours right from beginning. Mm-hmm. So when the management came to know there is a person who is willing to do this, then maybe after 2 or 3 weeks they shifted me to the spinning section. So that's whether you yourself took initiative and then you want Yes, to yes. come into some department. Nowadays, like people feel that they want to shift their department. I think ये एक learning भी है. The people who are ready to shift to their department, they start taking initiative, start learning Yes, about that department, and then yes. management will see, sir, your story resonate with me. Like I was into quality system, right? So I Mhm, thought that okay, I need to learn about now. I need to have the other responsibilities. So mhm. then what I did immediately, I asked my management that I need to take care of quality assurance, like incoming quality or in process quality or customer quality. So when there was some line was shifting from some other X location to our location, and then immediately I jumped in. I myself took initiative, and then management thought, okay, he's interested, he's giving more time. Why to put more expenses on the new engineer? Yes, yes, And what yes. happened in that case? I learned, and then after let's say a month or two, then management said, okay, if you're interested, you can also look after this area. I said, yeah, yes, that is what I want to do. I also want to look after this area. And that's how, I then become responsible for not only quality system, but, quality assurance also. And that's how my journey, I can say, started with the QA, quality assurance. So like, as you said, that you took initiatives. And this is what I think the viewers who are watching right now, they also need to learn that what they need to do. उन्हें क्या करना चाहिए, अगर उन्हें चाहिए कोई डिपार्टमेंट जाना, तो वो इनिशिएटिव लेना शुरू कर दें, इंतजार ना करें उन्हें परमिशन का भी. उन्हें बिल्कुल उन्हें अपने आप ही उसमें इन्वॉल्व होना शुरू करना पड़ेगा। आपको चीजों में इन्वॉल्व होना पड़ेगा फिजिकली, अगर आपको ऑपरेशंस में रहना है ना? देखिए, जो भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आएंगे उनको नेचुरली 70 to 80% को शॉप फ्लोर पे काम करना होगा, एब्सोल्युटली. और करना चाहिए, है ना? तो उसके लिए आपको अपने को ओवर स्ट्रेच करना पड़ेगा। अभी अगर देखिए, कई बार ये भी हम ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे कि बच्चे आते हैं, ज्वाइन करते हैं, और सपोज वो कोई गेट की तैयारी कर रहा है, कोई जीआरए की तैयारी कर रहा है, कोई एमबी के लिए कुछ कैट की तैयारी कर रहा है, होता है, हम लोग भी ऐसे ही सोचते थे। तो उसमें क्या होता है कि आप ना पूरी तरीके से अपनी एजुकेशन डेडिकेटेड कर पाते हैं, ठीक है ना? ना ही आप पूरे तरीके से अपने जिस जॉब के लिए आप आए हैं उसमें पूरा टाइम कंसंट्रेट कर पाते हैं। तो वो इनिशियल 2 या 3 साल का पीरियड जब इस तरीके का निकल जाता है, तब आपके लिए सीखना भी मुश्किल हो जाता है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी लेवल पे जॉइन करें, सपोज आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जनरल मैनेजर लेवल पे जॉइन करते हैं, तो मे बी के शुरू के 3, 4, 5, 6 महीने जो आपका हनीमून पीरियड आप कह सकते हो, मैनेजमेंट की नज़र में और जी सब जी. लोगों की नज़र में, उस पीरियड में आप अपनी पूरी न्यूसेंस यूज़ कर सकते हो सीखने के लिए। आप इर्रेलेवेंट क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस, जैसे भी छोटे-बड़े जो भी दिमाग में पूछ, लेकिन 6 महीने के बाद कोई आपको लीवरेज नहीं देगा। पीपल विल स्टार्ट गेजिंग यू आल्सो, कि भाई ये क्या बोलते हैं, इनकी हमारे प्रोडक्ट लाइन के बारे में क्या समझ है, ये हमारी इंडस्ट्रीज को कितना समझ पाए हैं, हमारे बिजनेस को कितना समझ पाए हैं, दे विल स्टार्ट गेजिंग यू आल्सो।
So you will have to fit to that level at that time. So आप कहीं भी जॉब करें, किसी भी सेक्शन में करें, किसी भी लेवल पे करें, इनिशियल समय जो होगा उसमें आप वहां की चीजों को लर्न करने के लिए आपको ओवर स्टेज करना हो, उसमें आपकी जवाबदेही कम से कम होती है, लर्निंग आपकी सबसे ज्यादा, इसलिए आपको कर लेनी चाहिए। बाद में ना आपको कोई समय देगा, ना ही कोई सिखाएगा। डो नॉट कंसिडर कि कोई आपको ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड सिखाता है, कोई नहीं सिखाता है, ये आपको खुद सीखने होते जी, हैं। ये भी आप एक समस्या भी है सर कि कोई सिखाता इनपुट नहीं है और लेके उसको खुद ही आपको सीखना है। एक्सरसाइज खुद करना होगा। ट्रू ट्रू। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी को भी आपको फेस करना है ना? प्रोफेशनल कंपटीशन को भी फेस करना होगा। आप किसी भी सेक्शन में काम करेंगे, आपका पीयर सेक्शन है, आपका सीनियर सेक्शन है, you will face competition from them also, but they will be cooperative for certain duration of your starting. जैसा कहते हैं मेटामॉर्फोसिस स्टेज, वो स्टेज में पास होना आपकी अपनी काबिलियत होगी। उससे अगर आप निकल जाएंगे, then you will get a good bondage with the others, and then they will also be part of your you can say supportive team. एक चीज सर जो आपने कही ना बड़ी अच्छी की, एक हम और भी सर डिफरेंट हमने लीडरशिप लेवल पे जो हमारे मैनेजर्स हैं या फिर जो प्लांट हेड हैं, मैन्युफैक्चरिंग हेड है, हमने उनके भी इंटरव्यूज लिए हैं। और एक्सपर्ट सीरीज में आप, मैं जो व्यूअर्स हैं वो अगर सर्च करेंगे एक्सपर्ट सीरीज सब मास्टरी, तो वो इंटरव्यू भी उन्हें मिल जाएंगे, हम लिंक में भी वो इंटरव्यूज डाल देंगे। तो एक मैंने ये देखी कि सबका एक ही कॉमन ये कहना था कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट की नॉलेज उन्होंने गेन करी, राइट। तो कहीं ना कहीं ये भी एक समझ में आता है कि अगर आपको लीडरशिप रोल पे जाना है तो आपको एक जगह शायद बंद के नहीं रहना, जैसे क्वालिटी में रह गए या प्रोडक्शन में रह गए या फिर R&D में रह गए। तो ये आपने भी सर किया और आप भी यही एडवाइस करेंगे कि मौका लगे तो अलग अलग डिपार्टमेंट का, मतलब घाट घाट का पानी पियो बोलते हैं, तो वो जरूरी है। आपको लगता है ये चीज बेहतर तरीका है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करना ही चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल करना होगा। देखिए ऐसा है कि मैंने, अगर मैं अपना कैरियर बताऊं तो मैंने यार्न इंडस्ट्री से स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने क्वालिटी हेड ज्वाइन किया यूनी प्रोडक्ट्स में। जब मैंने क्वालिटी हेड ज्वाइन किया तो मेरे को कंप्यूटर भी ऑपरेट करना नहीं आता था। ऑपरेट करना तो बहुत आगे की बात है, मैं कहता हूँ मुझे ऑन करना भी नहीं आता था, क्योंकि प्रोडक्शन में तो वो चीजें थी नहीं उस समय, है ना? तो मैंने, जो हमारे प्लांट हेड थे, मैंने जब उन्होंने मेरे को अपॉइंट किया क्वालिटी हेड, तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा सर मेरे को जो तो कंप्यूटर नहीं आता है चलाना, और यहाँ तो पूरा ऑटोमोटिव्स का काम है, टियर 1 सप्लायर है, सब डॉक्यूमेंटेशंस है, ये सब चीजें होती हैं। तो उन्होंने पता क्या कहा मेरे को? जी। बोला का एक बात बताऊं? बोला मेरे को भी नहीं आता है। जी जी। तो देखिए हमें ऐसे बॉस मिले, मतलब उन्होंने उस चीज को इतने लाइट वे में कर दिया, और वो ऐसा कॉन्फिडेंस देते ही है चीजें। बोला मेरे को भी नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर जो आपने बात की ना, मुझे एक इंटरेस्टिंग बात याद आ गई। मैं हेड ऑफिस में था, कॉर्पोरेट में था, तो वहाँ पे मुझे मतलब बैटरी प्लांट है तो वहाँ मुझे भेजा गया। तो मैंने कहा अपने बॉस को, जो हमारे CEO साहब थे, मैंने कहा सर आप मुझे क्वालिटी भी कह रहे हैं, सिस्टम भी देखो वहाँ का, तो मुझे तो बैटरी के बारे में ABC नॉलेज नहीं है। ठीक है, हमने जो काम किया है, भाई बैटरी में तो केमिकल इंजीनियर ज्यादा अच्छा काम कर लेगा, भाई आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर, तो मैं पहले से स्विच हो रही है, असेंबली हो रही है, तो उसमें आई हैव द नॉलेज। तो उन्होंने जो बिल्कुल जो आपने, आपके बॉस ने, आपके सीनियर ने जो बात कही, उन्होंने एग्जैक्टली मेरे CEO साहब ने कहा, उन्होंने कहा यार मुझे भी नहीं आता, मैं भी हाँ तो CEO हूं ना कंपनी का। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जब अंदर घुसोगे तो चीजें वो सीख जाओगे, और जैसे अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड है तो आप उस चीज को लर्न कर लोगे। अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड है तो नहीं है तो लर्न नहीं कर पाओगे। तो ये बड़ा मतलब करेक्ट। अच्छा लगा मुझे आपने बात कही, और मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ कि CEO साहब ने कहा मुझे भी नहीं आता अरुण, लेकिन देख मैं CEO हूँ, मैंने कहा सर आप तो ठीक है, आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन हमें तो काम करना है। कह रहे नहीं, सीख जाओगे। फिर उसने एक दो एग्जाम्पल दिए, देखो वो बंदे गए, उन्होंने सीखा, लर्न किया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज नहीं आती है आपको, और अगर मौका मिल लगेगा, आपको एटीट्यूड आपका सही है, लर्निंग एटीट्यूड है, तो आप उस चीज को सीख जाओगे। कितना समय लगता है? 1 2 3 महीने लर्निंग, जो टेक्निकल बिल्कुल लर्निंग हो तो जल्दी सीख जाते हो। सर, मैंने जो है उस समय, ये सन 2000 की बात है, जब कंप्यूटर चलाना नहीं आता था और वो कंपनी मैंने ज्वाइन की, तो वो शुरू में तो ठीक है भाई, थोड़ा काम किसी से करा लिया, इसी तरीके से चलता था, 2 4 महीने ऐसे निकले। लेकिन मैंने सोचा कि ऐसे होने वाला नहीं है। अब मान लीजिए ड्यूटी है 6 7 बजे, तो वहां से आते थे। उस समय सब जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थे वो बंद हो जाते थे शाम को। रेवाड़ी जैसे शहर में तो वो चलते नहीं थे शाम को।
तो मैंने कोई हीरो होंडा में जॉब करते थे, उनका पता किया, वो रेवाड़ी के रहने वाले थे, वो रात को 9 बजे घर आते थे अपने ड्यूटी से। तो मैं रात को 9 बजे, वो खाना-वाना जब खा लेते थे, 9 साढ़े 9 बजे उनके घर जाता था, कंप्यूटर चलाना सीखने के लिए। अरे वाह। साढ़े 9 से करीबन-करीबन वो साढ़े 10, 11, 1 सवा घंटा ही दे पाते थे उस समय, क्योंकि सुबह उनको भी फिर जाना होता था धारूहेड़ा। तो वो मैं ₹1500 पर मंथ देता था उनको। दैट्स ग्रेट। सिर्फ मेरे को ये चलाना सिखाएँ, ऑन कैसे होगा, पीपीटी कैसे बनेगी, वर्ड में कैसे काम करना है, एक्सेल में कैसे करना है, कलर कैसी, कुछ नहीं आता था सर। तो सो ग्रेट। ये जब ये करने लगे 2-3 महीने में, उन्होंने मेरे को थोड़ा ऐसा सिखा दिया था कि मैं अपने काम में जो एज़ ए क्वालिटी हेड काम है, उसमें मेरे को अपना एक इंडिपेंडेंस फिर होने लगेगी। उसके बाद धीरे-धीरे मैंने फिर टाइपिंग सीखी कि अगर आपको सिस्टम पे काम करना है और आपको जी अपना समय बचाना है, देन यू शुड नो लिटिल बिट बेसिक टाइपिंग आल्सो। जी जी जी। वो चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। ठीक है ना? आप महीना 2 महीना जाके थोड़ा ऐसा सीखिए कि आपकी स्पीड भी बने। जो काम 20 मिनट में होना है, वो अगर आप 10 मिनट में करेंगे, यू आर सेविंग 10 मिनट्स फॉर यू। तो इस तरीके से हमने फिर वो किया। उसके बाद चीज़ें अपने आप कंट्रोल में आने लग गई अपने। तो ये जो आपने बात की ना सर, जैसे आपने कंप्यूटर सीखा तो आपको लगन है, तो अभी कई सारे व्यूअर्स जो वॉच कर रहे होंगे, जो बिल्कुल यंग हो गए, उन्हें लगेगा अरे यार ये कंप्यूटर सीखना कोई बड़ी बात थी, या तो डेफिनेटली उस समय जब स्टार्टिंग थी तो एक बड़ी समय बात थी न। बिल्कुल। आज आज के बच्चों के सामने नए चैलेंज आएँगे। आज हाँ कंप्यूटर अवेलेबल है, मेबी कोई दूसरी चीज़ ऐसी होगी जो जी। उनको सीखने की ज़रूरत होगी। वो उन्हें खुद आइडेंटिफ़ाई करना है कि उनको अपने प्रोफ़ेशन में उनको क्या चीज़ चाहिए जो उनको हेल्प करे। और आपसे ना एक अच्छी बात मुझे ये लगी सर, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी इस चीज को मतलब समझें, देखें, जो इंजीनियर्स वॉच कर रहे हैं इसको, कि जैसे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे भाई, कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट अवेलेबल नहीं था, चलो आज तो बहुत सारे ऑनलाइन, जैसे सब हाँ, हाँ। मास्टरी भी अवेलेबल है भाई, कोई उनको ट्रेनिंग चाहिए कुछ चाहिए तो घर बैठे भी सीख सकते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो उस समय रिसोर्सेज ना होने के बावजूद आपने जो है अल्टरनेट रिसोर्स आइडेंटिफाई किया। तो ये मतलब किसी को जॉब कर रहा है उसको आपने पकड़ा भाई मुझे सिखाओ, और आप उसे घर जा रहे हो, एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहे हो, रात को लेट तक कर रहे हो, तो हाँ, ये यस, चीज जो है मतलब कहीं ना कहीं ये है कि अगर आपको सीखना है तो व्हेन, यदि ऐसे बोला जाता है शिष्य जब तैयार है तो गुरु अपीयर्स, लाइक व्हेन यू नो व्हेन शिष्य इज रेडी द गुरु विल अपीयर, तो गुरु अपीयर हो हाँ, जाएगा, तो आपने वो गुरु ढूंढा। बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास कंप्यूटर भी नहीं था, कंप्यूटर भी उन्हीं के पास था, तो जी उनके पास सीखने जाते थे, वो फिर खाना-वाना खा के वो अपना घर में ही सिखाते थे, उनका कोई इंस्टीट्यूट तो था नहीं। जी जी बट जी ये जी। था कि उससे मेरे को थोड़ा ये चीज़ें आई करनी, लिखना आया। ट अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था इश्यू। एक बार क्या हुआ, हम लोगों ने उस समय क्यूएस 9000 होता था, जी है ना? क्यूएस 9 जी मुझे याद है, वो तो टीएस में कन्वर्ट हुआ सर 1999 में, बाद में उसके टीएस बाद में कन्वर्ट हुआ। 2002, अभी अब वो आईएटीएफ चल रहा है सर, जो कि सम्मासी का एक ब्रांड प्रोडक्ट है आपके ये। यस, तो उसमें हुआ ये कि उसका हमने जो है मैनुअल टाइप किया, और वो हमने पूरा कैपिटल में टाइप कर दिया। अच्छा। क्योंकि वो ईज़ी लगता था उसको फ़ॉन्ट को करने में, कि भाई उसको के स्मॉल करें। अब वो जब हमने टाइप कर दिया, हमारे जो कंसल्टेंट थे वो उससे बड़ा इरिटेट हुए। उन्होंने क्या काम किया, वो आए और गुस्से में सारे पेपर उछाल दिए लैब में। बोले ये अच्छा। क्या किया है? मैंने कहा जी मेरे को तो ऐसे ही आता था। हाँ। अच्छा, दूसरा ये कि उसको फिर स्मॉल में करना नहीं आता था हमें। तो हमने अच्छा। क्या काम किया, वो सारा डिलीट कर दिया। और दोबारा लिखा वो फिर आपने। हाँ, फिर दोबारा लिखा। जी जी जी। तो देखिए, उन सब चीज़ों से ये ज़रूर आया कि हमें कुछ मतलब वो लेबरिश वर्क करना पड़ा। रात को जी 12-1 बज जाते थे, करते रहते थे उस चीज़ को। लेकिन उससे हमें सिस्टम की लैंग्वेज, सिस्टम का इंटरप्रिटेशन समझने में, वो चीज़ें एक तरीके से अगर मैं कहूँ कि मतलब हमें कंठस्थ सी हो गई थी उस समय। जी। तो वो एलिमेंट्स वगैरह, तो वो उन सब चीज़ों से हमें अपने दूसरी चीज़ों में फ़ायदा मिला फिर। तो कस्टमर के सामने प्रेज़ेंटेशन इम्प्रूव होने लगा, ठीक है ना? तो अब हम लोगों की जो कंपनी थी वो मतलब कोई बड़े कॉर्पोरेट तो थे नहीं, बट एक कस्टमर का कॉन्फिडेंस जब बनता है तो आपकी एक पर्सनल रिकॉग्निशन इंडस्ट्री में बनने लगती है, आपके सेक्टर में। तो हमें उन चीज़ों का पर्सनल गेन मिलता चला गया। कि पता चलता है कि हाँ, फलाँ जगह पे वो हैं, उन्होंने इस लेवल का काम किया हुआ है। मेबी कि बिग कॉर्पोरेट से आपकी पर्सनल इमेज इंडस्ट्री में कम बनती है, मेबी बहुत हायर लेवल पे जाके बनती है। बट डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द इंडस्ट्री एंड इफ यू आर ओवरस्ट्रेचिंग योरसेल्फ, देन यू विल गेट पर्सनल रिकॉग्निशन विदिन द इंडस्ट्री दैट राइट विल राइट। आल्सो सैटिस्फाई यू प्रोफेशनली। जी। एक सर आपने जो बात कही ना, एक तो बात जैसे समझ में आई, एक चीज और अब हम आगे बढ़ते हैं सर, इसको इंटरव्यू को आगे लेके जाते हैं, और एक चीज जो आपने कही कि जैसे कि इसमें कोई दो राय नहीं है, ये दिखता है कि
भाई किसी को आगे बढ़ना है तो उसे लर्निंग करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। अगर रिसोर्स अवेलेबल हैं या नहीं है, रिसोर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो बात तो सर बिल्कुल समझ में आई, और ये कहीं ना कहीं देखो पैटर्न है, ये क्वालिटी जो है लीडरशिप में मिलती हैं। तो इस वजह से आप 17 साल की जो एक आपकी एक्सपीरियंस था उसमें आप जो है प्लांटेड बन पाए। तो सर मैं आगे अब लेके जाऊंगा जर्नी को। एक सवाल ये आता है, जो हमारे यंग प्रोफेशनल्स हैं उनको लगता है यार कि जैसे अभी आप बात भी करें थोड़ी देर पहले कि ओईएम मिल जाए तो ओईएम का करियर बड़ा अच्छा होगा, या छोटी कंपनी ना मिले। तो आपका इसमें क्या विचार है कि भाई एक छोटी कंपनी या टीयर 1 कंपनी जो कि ओईएम को सप्लाई कर रही है, तो क्या ऐसा कुछ है? क्योंकि अभी तो जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि ऐसा नहीं है, टीयर 1 कंपनीज भी आजकल बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई हैं, और वो ओईएम से भी कहीं बड़ी कंपनीज हैं, और सिस्टम भी उनके अच्छे एमएनसी कंपनीज हैं। तो जहां आपको सेटिस्फेक्शन मिले और करना चाहिए और जो मौका मिले, फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका क्या इसमें टेक है कि छोटी कंपनी वर्सेस बड़ी कंपनी। नहीं, कोई नहीं फर्क पड़ता है। आपको अपने को अगर ग्रूमिंग ज्यादा करनी है तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि देखिए, आप कितनी जल्दी ऊपर जाना चाहते हैं, कितने स्टेप्स जल्दी जाना चाहते हैं। तो छोटी कंपनी में मल्टीटास्किंग ज्यादा होती है, मल्टी स्किलिंग का आपको एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। एंटरप्रेन्योरशिप आपको ज्यादा समझ में आएगी। बड़ी कंपनी में वो चीजें मे बी के हर लेवल के अकॉर्डिंगली वो डिवाइड हो जाती हैं। तो शायद बड़े कॉरपोरेट्स में जो लोअर लेवल पे ज्वाइन करते हैं उनको हैंड ऑन एक्सपीरियंस उन चीजों का मिलने में बहुत समय लग जाता है। नॉलेज मिलती रहती है, एक्सपीरियंस नहीं मिलता है इतना जल्दी। उन इंडस्ट्रीज के अंदर एक्सपीरियंस जल्दी मिलना शुरू होता है, और अगर आप थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट करके उसके रिलेटेड नॉलेज भी गेन कर लें पैरेलली अपने एफर्ट से, देन यू विल गेट ए बेटर ग्रोथ इन द मिड साइज एंड द स्मॉल साइज कंपनीज। मतलब एक चीज होगी एक्सपीरियंस, दूसरा है नॉलेज। तो आपको एक्सपीरियंस मिड साइज कंपनी में और स्मॉल साइज कंपनीज में जल्दी मिलना शुरू हो जाता है, जो एक्सपीरियंस आपको बड़ी साइज की कंपनी में लेटर स्टेजेस पे मिलता है। बट नॉलेज में रिवर्स है दोनों। जी मिड साइज और स्मॉल साइज कंपनीज में आपका नॉलेज गेन करने के जो सोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो आपको एडिशनल कुछ ना कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जैसे कि ट्रेनिंग सपोज ऑर्गेनाइज करनी है, या कोई कोई भी दूसरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएट करना है, आपको ये सपोर्ट बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में इजीली मिल जाती है। जी, बट कंपनी स्पॉन्सर रहती है, कंपनी नॉट स्पॉन्सर कर लिमिट देती है। that you should not consider that it has limited your career growth. You will have to do personal effort to get these things in the mid size and small size companies, which you should do. बहुत समझ आया। आपने कहा था अगर छोटी कंपनी है, मिड साइज कंपनी है या स्मॉल साइज कंपनी है, तो वहां पे आपको अगर अपना नॉलेज बढ़ानी है तो वहां पे, क्योंकि वहां पे ऐसा एटमोसफियर नहीं होता, एनवायरनमेंट नहीं होता, Correct. तो वहां पे आपको एडिशनल एफर्ट्स करके अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। बड़ी अपनी कंपनी तो जिम्मेदारी डेफिनेटली खुद उनके लेनी। बजट होते हैं, ट्रेनिंग का बजट होते हैं, वो आपको चीज सिखा देंगी, महंगी महंगी ट्रेनिंग भी करा देंगी। बट छोटी कंपनी या मिडिल साइज कंपनी में आपको जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी अपनी Yes, कंपिटेंसी बढ़ाने की। ये आप correct. कहना चाह रहे हैं सर? मेरा इस तरीके का रहा है, थॉट प्रोसेस रहा है। इसीलिए एब्सोल्युटली। तो मतलब कहीं पे भी अगर ऐसी कोई मेरे साथ में कुछ हैं इस तरीके के लोग, जिन्होंने पर्सनली लाख रुपए, सवा लाख रुपए खर्च करके, किसी ने मतलब कोई ऑटोमेशन के लिए कोई 15 दिन का 20 दिन का कोर्स ज्वाइन किया, दैट्स इस ग्रेट। तरीके से। अच्छा, उनको हमने ये सपोर्ट ज़रूर किया कि सपोज़ वो आया हमारे पास कि भई मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ। नाउ वी नो कि भई हमारी उस इंडस्ट्री में लिमिट है, हम उसको शायद फाइनेंस नहीं दे पाएँगे। हमने उनकी लीव्स अप्रूव कर दी कि उनका पेमेंट नहीं कटेगा उस पीरियड में, ये इंश्योर दैट्स हमने ग्रेट। करा दिया। बट खर्चा वहाँ का वो खुद करेगा। ये जो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, और मैं भी अपने सेमिनार में भी अपने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, उनको ये कहता हूँ कि भाई 3 तरीके हैं। पहला, कोशिश करो कि आपको छुट्टी मिल जाए और स्पॉन्सर भी मिल जाए, आपको कोर्स के कंपनी स्पॉन्सर कर दे। दूसरा ऑप्शन ये है कि चलो पैसे नहीं देते हैं कंपनी आपकी, जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो कम से कम छुट्टी स्पॉन्सर करा लो। और तीसरा ये है कि भाई छुट्टी भी ना स्पॉन्सर हो, पैसे भी ना स्पॉन्सर हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी जेब से कर लो। क्योंकि ये अल्टीमेटली अगर ग्रोथ नहीं हुई, डेवलपमेंट नहीं हुई, आपकी कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ी, किसका घाटा है? कंपनी का इतना बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल। घाटा नहीं जितना एज ए पर्सनल इंजीनियर का एज़ ए या अपना पर्सन, खुद का घाटा है। देखिए ये कई चीज़ों में हमें कई बार कंसर्न आता है, इवन जैसे इंक्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, प्रमोशंस होते हैं, उनमें जब इस तरीके के कभी-कभी ग्रीवेंसेस आते हैं कि कोई आके कहता है, तो मतलब कई बार देखिए मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ आप गलत भी कह सकते हैं। बट मैं जो उनको गाइड करता हूँ, मैंने कहा देखो ऐसा उनके क्या होता है, कई बार मान लीजिए किसी का अच्छा पैसा नहीं बढ़ा, ठीक है ना? तो एक आदमी के मन में रिजेंटमेंट आता है। उससे उसकी अपनी जो एक्टिविटीज़ है ना, वो थोड़ी-सी डेटेरिएट होनी शुरू होती है।
ठीक है, जब डेटोरिएट होती हैं तो उसकी इमेज खराब होने लगती है। वो चीज होएगी तो उसका अफेक्ट डायरेक्ट नेक्स्ट टाइम पे पड़ेगा। हो सकता है कि इस समय उसका इवैल्यूएशन मैंने गलत किया, लेकिन अगले साल वो मुझे जस्टिफाई कर देगा कि मैंने इवैल्यूएशन सही किया। क्यों? एब्सोल्युटली, ये तो बड़े पता की भाई बात मैंने कही। उसका गलत किया, तो उसने अपने आप को 1 साल में इतना खराब कर दिया कि उसने 1 साल बाद मुझे सही साबित कर दिया। ये तो आपने मैं बड़ी उनको अच्छी यही बात कही कि समझाता हूँ, मैंने कहा ये मौका मैनेजमेंट को मत देना है। एक्सीलेंट। ठीक है ना? आपको अगर सैटिस्फैक्शन नहीं है, यू आर ऑलवेज फ्री टू लीव द जॉब एंड फाइंड समवेयर एल्स, बट यहाँ करोगे तो आपको डबल एफर्ट से करना है ये काम। ये बहुत इंजीनियर डीमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत वर्किंग प्रोफेशनल डीमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई इंक्रीमेंट अच्छा नहीं हुआ, तो आपने कहा चलो मैनेजमेंट की गलती है भाई, नहीं किया उसने किसी भी कारण से, लेकिन इसमें हाँ, ये मत करो परफॉर्मेंस कम मत करो, क्योंकि वो एक परफॉर्मेंस का मतलब। हाँ आदत बन जाती है सर। मतलब ये मैंने देखा कि कई बार अगर साल 2 साल अगर आपने काम चोरी करके काम कर लिया, दिल से काम नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आपकी हैबिट में शामिल हो जाएगा। हैबिट में शामिल हो गया तो घर में चला गया, तो वो हैबिट जो है घर के लिए भी ठीक नहीं है भाई। आप आलसीपन या फिर इन्वॉल्व नहीं बिल्कुल। होना, इनिशिएटिव नहीं लेना, तो कहीं ना कहीं ये आपने जो बात कही कि अगर एक बार मैनेजमेंट की गलती हो गई, उसने आपको सही हम्म। इंक्रीमेंट मत किया, तो उसको सही साबित मत करो अगली बार के लिए कि ठीक है हाँ, साहब मैं 1 काम साल नहीं बाद करता। उन्हें सही साबित होने का मौका मत दो। आप डबल एफर्ट करो और अगले साल उन्हें रियलाइज करो आपने पिछले साल मेरा गलत किया था। और दूसरी बात ये है कि भाई जैसे आपने दुनिया बहुत बड़ी है, और ठीक है अगर आपको नहीं लग रहा है कि कोई अपनी कॉम्पिटेंसी बढ़ाओ, लाखों कंपनियां हैं यहाँ बिल्कुल, पे बिल्कुल। जो स्किल की रिस्पेक्ट करती हैं, अप्रिशिएट करेंगी, आपकी कॉम्पिटेंसी जो है बड़ी, मतलब एक नेक्स्ट बिल्कुल। लेवल की होनी चाहिए। सर तो एक चीज उससे और आप जी। देखिए क्या होता है कि आप उसको जब फेयर सजेशन देते हैं, तो उससे आपका एक बॉन्डेज भी बढ़ता है। हम जिसको टीम बिल्डिंग कहते हैं। टीम बिल्डिंग कब होगी? टीम बिल्डिंग जब होगी जब मैं अगर कोई ग्रीवेंस लेकर अरुण जी के पास आता हूँ, तो मुझे अरुण जी वो सलाह दें जो मेरे लिए ठीक है, और अरुण जी फेथ डेवलप कर ले कि मैं उन पे विश्वास कर सकूं। तो जब वो अगर आप उसको बिल्कुल एक नेचुरल सलाह दें, उसमें कोई आर्टिकुलेशन नहीं होना चाहिए, कोई मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, उसे नेचुरल सलाह दें, तो उससे जो टीम बिल्डिंग होगी ना, वो टीम के साथ फिर आप ग्रो और बेटर कर पाएंगे। सबसे बड़ा जो लीडरशिप के लिए एक क्या कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट होता है कि लीडरशिप कैसे फेथ डेवलप करे डाउन द लाइन, कि डाउन द लाइन के लोग उन पे फेथ कर पा रहे हैं। वो फेथ अगर डेवलप हो जाता है, देन इट इज, आप कह सकते हैं कि भाई लीडरशिप ने एक बहुत बड़ा रोल अपना पूरा कर दिया। बाकी तो देखिए सभी लोग अपना जॉब करते हैं, अपना केआरए अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसको बेटर होगा, अच्छा नहीं करेगा तो बेटर नहीं होगा। बट व्हाट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने के लिए जो आपको पूरा कल्चर बिल्ड करना है, उसमें फेथ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल। जी, ये तो बहुत ज्यादा आपको लगता है कि लीडरशिप का काम ही है कि फिर डेवलप करना डाउन द लाइन। जी। और क्या चीज सर आप कहना चाहेंगे, जैसे आपने बताया एक, अगर मैं आपसे पूछूं कि लीडरशिप की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो जैसे एक आपने फेथ बताया, अगर और कोई आपको लगता है 2 या 3 ऐसी मुख्य क्वालिटीज हैं जो आपको लगता है कि डेवलप करनी है, जो लोग लीडरशिप पोस्ट में जाना चाहते हैं। हाँ, देखिए एक तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ कि लीडरशिप पे फेथ होना चाहिए, जो डाउन द लोग काम कर रहे हैं, वेदर इट इज इवन अप टू द एसोसिएट लेवल। एक इवन मैं कहूँ कि सबसे लोअर लेवल पे अगर कोई स्वीपिंग में उनमें काम करने वाले, उनको ये लगे कि अगर उनकी कोई छोटी मोटे इश्यूज के लिए वो आएंगे आपके पास, देखिए कोई बड़े इश्यूज के लिए तो कोई नहीं आएगा। वो तो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली उन्हें भी पता है कि ये पैकेज है, उनको मिल रहा है, ये उनका काम है। अब उनके छोटे मोटे इश्यूज हैं, अगर उनको ये लगता है कि आपसे बात करेंगे सोल्व हो जाता है, तो दैट वो उसका आपके ऊपर फेथ बढ़ता रहता है। दूसरा है डेलीगेशन, वेदर यू आर एबल टू डेलीगेट। तो एक हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज में आई थिंक आप भी अगर कोई ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ कुछ कोर्सेज इनिशिएट कर सकें, आर्ट ऑफ डेलीगेशन, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप अगर आप देखिए, इफ वी डू नॉट डिस्कस मच अबाउट द पॉलिटिक्स, वेयर एवर देर इज ए सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, whenever the person who is having the power centered at his hands, when he goes, everything shatters. Why? True. So art of delegation should be in such a way that people should be able to take over. So, and how do you develop this? You will have to delegate responsibility, you will have to delegate somewhere authorities also. True. And this is the, I think, biggest challenge for the leadership in any organization, to develop faith and how to delegate the powers. That's good. By defining in the KRAs, I think is not much sufficient.
एम्पावर भी करना पड़ेगा उसको, It is कहीं a ना कहीं डेलीगेट भी करना पड़ेगा, अथॉरिटी देनी पड़ेगी, ये नहीं कि सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, अथॉरिटी भी something दो उसको। behavior, yeah, something it should come from your behavior. यस यस यस। So तो ये I सर जो think आपने बात कही डेलीगेट की भी करना है, और तो कई बार सर ये हमने देखा है समटाइम व्हाट वी हैव सीन की जो बॉसेस हैं सीनियर्स हैं कहीं ऐसे भी होते हैं, बट लाइक वी से वी कैन कैटेगराइज लाइक पीपल आल्सो डू यू नो गुड बॉस बैड बॉस, समटाइम इट हैपन कि चलो लड़के में ही कॉम्पिटेंस नहीं है, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि बॉस भी आजकल जो है कई सारे ऐसी कंपनीज में है, डेफिनेटली नाम नहीं लेना चाहेंगे, बट ऐसा बहुत जो बार आया, हमारे मेंबर्स ने भी शेयर किया कि भाई सिखाना नहीं चाहता या डरते हैं या कॉम्पिटेंस कम है तो पॉलिटिक्स बाजी करता है, तो मेरा क्रेडिट खा जाता है, मेरे को क्रेडिट नहीं देता, तो ऐसा उनके ऊपर बहुत आरोप लगते रहते थे बॉस के ऊपर भी। see यहीं पे फेथ लीडरशिप जो फेथ डेवलप करेगी वो लीडरशिप के ऊपर क्वेश्चन मार्क, इट इज नॉट क्वेश्चन मार्क ऑन योर बॉस। आपके बॉस ने अगर आपके पोटेंशियल को एक्सपोज नहीं होने दिया, ऊपर नहीं पता चला, तो ये लीडरशिप का ही प्रॉब्लम है ना, ये बॉस का प्रॉब्लम नहीं है। बॉस तो छोटा सा आइटम है उसमें पूरे साइकिल में। तो सिस्टम ही सही नहीं है, आप कह रहे हो वो कल्चर सिस्टम सही नहीं है यस कि ऐसा यस, ओपननेस नहीं है उस कंपनी में, सिस्टम्स नहीं हाँ है, तो ओपननेस नहीं है, तो प्लेटफॉर्म नहीं है लीडरशिप के अपनी लिए बात शेयर चैलेंज करने का। वही है, लीडरशिप के लिए चैलेंज वही है कि वो किस तरीके से इसको इंश्योर करे। हम उसको सिर्फ एक सबऑर्डिनेट और बॉस के लेवल पे लिमिट नहीं कर सकते। अगर वो प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम वहां की है ही नहीं, वो तो उसके ऊपर की प्रॉब्लम है। तो आपने बहुत पते की बात। और दूसरा तीसरा पॉइंट लीडरशिप के लिए, मतलब देखिए कोई भी बिजनेस है तो डेफिनेटली उसका एक टेक्निकल पार्ट भी होता है। तो टेक्निकल पार्ट्स के लिए लीडरशिप में ये कैपेबिलिटी पर्सनल लेवल पे भी होनी चाहिए उनकी, कि वो 3 to 5 years का बिजनेस प्रोजेक्शन, बिजनेस प्लान कंसिडरिंग कि क्या नए चेंजेस आने वाले उन चीजों के लिए, उनमें पर्सनली भी वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो आई थिंक ये जो 3 चीजें हैं, फेथ, डेलीगेशन एंड द विजिबिलिटी फॉर द बिजनेस, तो उस लीडरशिप को रेस्पेक्ट मिलेगी इंडस्ट्री में। जो आई थिंक ये 3 चीजें, मे बी के 2-4 चीजें और भी इसमें ऐड हो सकती हैं जो अगर और उसमें जाए, बट काइंड ऑफ द सेक्टर विच वी सी कि भाई जो सिचुएशंस में हम काम करते हैं, डायनामिक सिचुएशन में काम करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, तो आई थिंक जो ये होती है तो वो लीडरशिप आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर शेप में रख पाती है। जी ग्रेट सर, आपने बताया सर लीडरशिप की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, डेफिनेटली और भी क्वालिटीज की आवश्यकता है, बट ये टॉप आपके हिसाब से ये एक ट्रस्ट और डेलीगेशन और एक विजन जो है होना चाहिए, या फिर एक प्लानिंग उनकी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो बिल्कुल सर आपने बड़ी अच्छी बात कही। तो आपने ये भी बताया कि जो इंजीनियर्स हैं अगर इस तरीके की सिचुएशंस हो रही है वर्किंग प्रोफेशनल के साथ, तो कहीं ना कहीं वो सिस्टम में एक गलती है। जैसे इसका एक एग्जांपल भी उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे मैं मिंडा ग्रुप में था तो वहाँ पे प्लेटफॉर्म है कि भाई आपको प्रेजेंटेशन देने का मौका मिलेगा, तो वो प्लेटफॉर्म मेरा बॉस कितना भी चाले, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है या मुझे एक रोल दिया गया है, तो मुझसे मैनेजमेंट कहती है आप प्रेजेंटेशन दो। और अभी सर हम जो IATF जो है सिस्टम है, QMS है, तो वहाँ भी प्रोसेस ओनर की बात की गई है, तो फोकस तो किया जा रहा है जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके द्वारा भी। और जैसे आपने कहा कि सिस्टम जो है मैनेजमेंट ड्रिवन, अगर मैनेजमेंट ने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि ओपन कल्चर है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बॉस इस तरह की हरकत जो है नहीं करेगा, वो करेगा तो विजिबल हो जाएगी, वो दिखेगी, हाँ भाई ये बिल्कुल क्रेडिट खा रहा है या फिर कहीं ना कहीं इंजीनियर्स को दबा रहा है या वर्किंग प्रोफेशनल को, अपने हमें जूनियर को देखिए, काम नहीं करने हमें देगा। एज ए लीडरशिप जो है हमें कई टूल्स यूज करने पड़ेंगे कि हम किस तरीके से ये पता कर पाएं कि हमारे नीचे के 100 लोग में से अगर 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 1000 लोग हैं, किसका क्या पोटेंशियल है। ठीक है ना, मे बी कि आप इंडिविजुअल लेवल पे उतना ज्यादा नहीं जा सकते, इतना जल्दी नहीं जा सकते, बट देयर इज ए टाइम जहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये होगी, सपोज आप लीडरशिप रोल में किसी कंपनी में 5 साल से हैं, सो इट इज वेल एक्सपेक्टेड यू शुड नो एवरीबॉडीज पोटेंशियल। अगर 5 साल से या 7 साल से हम किसी कंपनी में लीडरशिप टीम में हैं और हमें सिर्फ 10 लोगों के बारे में ही पता है और उनमें से भी 4 लोग नहीं है तो 6 का ही पता है, तो दैट इज नॉट सफिशिएंट टू बी विद द लीडरशिप टीम। ट्रू ट्रू। ठीक है ना, तो आई थिंक जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं कि एक लड़का ऐसा हो सकता है आपकी टीम में जो प्रेजेंटेशन अच्छा बना सकता है। एक लड़का ऐसा अच्छा हो सकता है जो आइडिया अच्छा दे सकता है, बट वो प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं दे सकता। अब प्रेजेंटेशन देने तो वही जाएगा ना जो अच्छा बना रहा है, तो फिर आपने एक गैप कर दिया। तो यू विल हैव टू, लीडरशिप को ऐसी चीजें निकालनी होगी कि भाई ठीक है, ये इसमें स्किल नहीं, इसकी दूसरी स्किल कौन सी है ना। किसी की ये स्किल अच्छी है, जो आपसे बात कर रहा है वही सब कुछ, ऐसा तो नहीं है, उसके पीछे भी एक बैकअप रहा होगा, 4 लोगों के इनपुट रहे होंगे, वो चारों के इनपुट नहीं छुपने चाहिए।
तो हमें लीडरशिप टीम में उन 4 का भी पता होना चाहिए, नॉट ओनली उस एक का। और ये ही फेथ जो होता है वो यही है कि आप किस तरीके से उन 4 को भी आप पे फेथ है कि उन्होंने जो काम किया वो आपको पता होगा, उन्हें बताना ना पड़े। एक हो सकता है बताने में एक्टिव हो, वो बता पाएगा, हो सकता है 4 बताने में उतने एक्टिव नहीं है, तो इट इज़ नॉट देयर वीकनेस ना, इट इज़ योर वीकनेस कि यू आर नॉट एबल टू नो देयर पोटेंशियल। आप उनकी वीकनेस कह के अपने को डिफेंसिव मोड पे नहीं ले जा सकते। राइट, मतलब आपको भी अपने आप को डेवलप करना है एज ए लीडरशिप में, तो सर यस। बहुत बड़ा ये मतलब चैप्टर भी है, और डेफिनेटली इतना बड़ा मतलब कहीं ना कहीं हम कोशिश कर रहे हैं सर एक छोटे से टाइम ड्यूरेशन में आपकी जो एक एक्सपीरियंस रहा है 30 साल का, उसे 30 मिनट या 1 घंटे में शामिल करने का, तो डेफिनेटली ये हमारे लिए भी चैलेंज है, बट बहुत अच्छा सर आपसे लग रहा है। तो सर मैं आप इस बात को थोड़ा और आगे लेके जाना चाहूंगा, और ये आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कुछ लोग प्लांटर जैसे बन भी जाते हैं और जो बनते हैं जब, तो उनको ये भी डर रहता है कि यार ज्यादा लीडरशिप रोल पे जाएंगे, हालांकि ये थिंकिंग बहुत कम लोगों की है, सभी लोगों की नहीं है, कि यार हुँ, ज्यादा हुँ। ऊपर जाओगे तो टेंशन भी ज्यादा लेनी पड़ेगी, परेशानियां भी ज्यादा झेलनी पड़ेंगी। तो हुँ, ये आपको लगता है कि डेफिनेटली भाई ऑब्वियसली ये बात समझ में आती है, जितना बड़ा हुँ। रोल होगा उतना ओहदा बड़ा होगा, सैलरी ज्यादा होगी, तो टेंशन तो डेफिनेटली आपको लेनी पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है कि तो लेनी उससे पड़ेगी, डील बिल्कुल कैसे किया लेनी। जाए, तो वो स्ट्रेस जो आता है एक जो लीडर के ऊपर, या प्लानट बने मैन्युफैक्चरिंग हेड बने, तो वो स्ट्रेस को सर आप कैसे मतलब डील करते हैं? तो मैं चाहूंगा सर इस बारे में भी हमारे व्यूअर्स को, आप हमारे मेंबर्स को बताएं। देखिए ऐसा है कि जैसे-जैसे आप लेवल अप होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आपको जो है स्टेक आपका बढ़ता है। जब आपका स्टेक बढ़ता है तो डेफ़िनेटली आपका सिंपल वर्ड्स में कहें रिम्यूनरेशंस बढ़ता है, तो मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। तो आपको वो स्ट्रेस तो लेना ही पड़ेगा। अब इसमें ही ये आता है कि वो स्ट्रेस लेने के बाद आप नीचे डेलीगेट क्या कर पाते हैं। जो आप आज कर रहे थे, जिसके बेसिस पे आप अपग्रेड हुए हैं, अपग्रेड होने के बाद कुछ नई एक्सपेक्टेशंस जो ऐड हुई हैं, आप उनको पॉलिश करिए और जिन बेसिस पे आप अपग्रेड हैं, उसमें से कुछ पोर्शन आपको डेलीगेट करना पड़ेगा। अगर आप उसको डेलीगेट नहीं करते हैं और नई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड करते हैं, तो आप डेफिनिटली फिर अंडर स्ट्रेस हो जाएँगे। तो जो आर्ट ऑफ डेलीगेशन है, दैट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट अपनी ग्रोथ प्लान में। बहुत जगह ऐसा होता है कि सपोज़ किसी को आपने जनरल मैनेजर बना लिया, है ना? वो बहुत अच्छा काम कर रहा था, सीनियर मैनेजर, डीजीएम वगैरह बन के जनरल मैनेजर बना लिया। अब जनरल मैनेजर बनाने के बाद भी वो उन एक्टिविटीज़ को फिर भी अपने तक ही लिमिट किए हुए हैं, जो वो उस समय करते थे। और जनरल मैनेजर बनाने के बाद आपने उनको एडिशनल एक्टिविटीज़ कुछ और दे दी। देन वो ना वहाँ जस्टिस कर पाते हैं, ना उधर कर पाते हैं, कुछ समय के बाद वो छोड़ के चले जाते हैं। तो वो आपको डेलीगेशंस भी करना होगा कुछ चीज़ों का। यू कैन नॉट डू द सेम थिंग्स एवरी ईयर। तो जब आप अपग्रेड हो रहे हैं, आप नई चीज़ों के लिए आपको तैयार किया जा रहा है और उन चीज़ों के लिए आपको चैलेंज भी लेना होगा। मे बी कि उन चीज़ों में आप क्या कहते हैं फ्रेशर्स हैं, बट आपने वो चैलेंज लिया है तो आपको सेल्फ अपग्रेड करना पड़ेगा अपने को नो हाउ कलेक्ट करना पड़ेगा। सोर्सेज़ विदिन द योर ऑर्गनाइज़ेशंस अगर अवेलेबल नहीं है, तो आपको अपना पर्सनल नेटवर्क से वो चीज़ें लानी पड़ेगी। या मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी कि मेरे में ये कमी है, मुझे ये नॉलेज के लिए ये चीज़ें चाहिए, ये काम करने के लिए। तो मैं नहीं समझता कि भले ही कोई छोटी कंपनी है या बड़ी कंपनी, कोई भी मैनेजमेंट मना करे, अगर आप फेयरली जाके उस चीज़ को एक्सप्रेस कर देते हैं कि मेरे को ये काम करने में ये दिक्कत आ रही है, सीखने की ज़रूरत है। एक्सपेंस पे बात आ सकती है, लेकिन वो मना नहीं करेंगे, आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दें। राइट, तो आपने सर ये कहा कि अगर जैसे कहीं ना कहीं आपकी कॉम्पिटेंसी आपको बढ़ानी पड़ेगी, और नहीं जैसे ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उस पोजीशन पे क्या कॉम्पिटेंसी चाहिए, और जो आपने कहा कि डेलीगेट करना जरूरी है, बट कई बार ये भी होता है कि यार रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होते हैं, और उसी में ही फिर आपको बेटर करना होता है, तो ये एक चैलेंज हो जाता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज में आपको वो कैसे आपको वो बेस्ट आता परफॉर्मेंस है। देनी है। देखिए, उस चीज़ के लिए भी आपको मैनेजमेंट को भी कन्विंस करना पड़ेगा। जब वो आपको अपग्रेड कर रहे हैं, तो आपकी जगह पे कौन है? अगर आप किसी को तैयार नहीं कर पाए हैं, सपोज़ 2 साल, 3 साल, 4 साल में और आप अपग्रेड हो गए, तो डेफ़िनिटली किसी को उस लेवल पे लाना पड़ेगा, जो आपके लेवल पे था। उसमें ये इन्फीरियरिटी आप में नहीं आनी चाहिए कि आप उसमें क्या कहते हैं, आपके लिए चैलेंज क्रिएट होगा, ऐसा नहीं होगा। आपके लिए तो आगे है चैलेंज, पीछे नहीं है चैलेंज, आगे है। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही
नई चीज आप पकड़ते हैं तो पुरानी चीज डेलीगेट करें और टीम भी डेवलप कर रहे हैं उसी हिसाब से, और बिल्कुल जो मेरे ख्याल से जो रिसोर्सेज है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हुए डिमांड करते रहो मैनेजमेंट से, बट उसका जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स है उसको भी बेस्ट यूटिलाइजेशन करके दिखाना होगा, तभी यकीन हो कि हाँ भाई जो रिसोर्स है उसका आप यूटिलाइजेशन कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो वो मतलब एक ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये कभी भी एंड नहीं होगा। जी देखिए, जब आप मान लीजिए सपोज आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं, हम लोग करते हैं कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप सिखाते हैं, कल को अगर वो बिजनेस करता है तो क्या करेगा? वो बिजनेस करेगा तो वही काम करेगा ना जो आज की आपकी कंपनी का एमडी करता है। वो बिजनेस लाने का काम करेगा, वो कस्टमर डेवलप करने का काम करेगा, वो फाइनेंस के काम करेगा, ठीक है ना? वो काम तो नहीं करेंगे जो आज कर रहे हो आप। तो जब एंटरप्रेन्योरशिप आपने डेवलप करनी है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ना कि डेलीगेट कुछ तो करना पड़ेगा। ट्रू ट्रू। तो ये मतलब एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं अगर कंपनी में, अगर आप बिजनेसमैन हो, जैसे आपने कहा कि भाई जैसे आई आल्सो केम इनटू दिस एंटरप्रेन्योरशिप ऑलमोस्ट 9 इयर्स बैक, 9 साल पहले मैं इस मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में आया, तो हाँ, बिल्कुल मतलब कोरियर बॉय का काम भी किया, एक हाउस कीपर वाला काम भी किया, बिल्कुल, तो बिल्कुल। है ना, और एक एमडी वो वाला सब किया ना, सीईओ वाले लेकिन काम आज सारे तो ही करने पड़ आज रहे उस हैं। काम के लिए जी आपको डेलीगेट किसी को करना होगा। अब जैसे इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपने किसी और को डेलीगेट किया, तो वो समय आपको इस तरीके से अपना समय बचाना होगा। उनके लिए ट्रू वो इम्पोर्टेंट है। कल को वो जब अपग्रेड होंगे तो उन्हें ये काम किसी और को देना होगा। ट्रू ट्रू ट्रू, हो सकता है आने वाले टाइम में ये एक्सपर्ट ऑफ चीजें भी मेरे द्वारा की जा रही है, तो ये भी मैं अपने आप को भी रिप्लेस कर सकता हूँ, और कोई और हाँ, व्यक्ति जो है इस एक्सपर्ट ऑफ सीरीज को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि जो हमारे टीम मेंबर हैं, विकल्पा उनका नाम है, तो उन्होंने आपसे यस। कोऑर्डिनेट किया और ये इंटरव्यू प्लान किया, तो डेफिनेटली वो जो समय लगा या 1 घंटे 2 घंटे जो भी उनका समय लगा होगा कोऑर्डिनेट समय करने में, तो लगता है, वो मेरा मेंटली वो समय प्रिपेयर बच गया। होता है आदमी जी तैयार करने के लिए, जी उनको सोचना होता है, वो भी एक समय है ना? तो जी जी वो जी जी उन्होंने किया। और जैसे जैसे आपका ओरिजिन बढ़ेगा, मे बी कि आपको 2 या 3 ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो अलग अलग रीजन में करें, जी जी जी, बहुत आई है ना? थिंक या शानदार हाँ, एग्जांपल सर आपने दिया, और ये जो मेंबर्स हमारे सुन रहे हैं तो वो रिलेट भी कर पाएंगे किस तरीके से जो फैक्ट्री में या कंपनी में आपको, अगर आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं तो आपको लीडरशिप टीम या अपने लोग जो है वो डेवलप करने पड़ेंगे, अदरवाइज स्ट्रेस करेक्ट, आपका हमेशा बना रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। या जी तो जी आपको अपनी स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी और आपको डेलीगेशन भी करना पड़ेगा। जी जी सर, आज मतलब मजा आ गया, और ये इंटरव्यू चल रहा है बहुत जबरदस्त चल रहा है, तो अब मैं सर हम इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव में आ गए हैं, तो सर अभी मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे आपको सक्सेस मिली और अभी आप लीडरशिप रोल में भी रहे हैं, आप बता रहे थे कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बनने का भी आपको ऑफर जो है, तो एक बहुत ही बड़े सम्मान की बात है, तो एक इतने बड़े बड़े ऑफर आपको मिलते हैं अभी या मिल रहे हैं, और इस तरीके में जैसे अभी आप जिस पोजीशन पे हैं, 30 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस है, तो और बहुत सारे लोग सर आपकी पोजीशन पे जाना चाहते हैं, दे लुक अप टू यू की हमें पार्टनर बनना है या हमें लीडरशिप रोल पे जाना है, तो बहुत सारी बातें जो हमने करी हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारे मैसेज जो हैं, हिडन हिडन मैसेज हैं, जरूर नहीं कि हम डायरेक्ट जो बात कर रहे हैं, कई बार कहीं हिडन मैसेज होते हैं बातचीत में, जो समझदार लोग हैं वो डेफिनेटली उसे पिकअप कर लेंगे, तो मैं ये भी चाहूंगा कि व्यूअर्स ये लिखें कि आज जब राजीव शर्मा शर्मा सर के साथ हमारी बातचीत हुई तो क्या बात आपको जो है बहुत अच्छी लगी, तो एक बार कमेंट में जरूर टाइप कीजिए, और डेफिनेटली हम उसे आगे देखेंगे आपको रिप्लाई करेंगे, तो आप लिखिएगा जरूर कि क्या चीज सबसे अच्छी जो आपको लगी इस इंटरव्यू के दौरान। तो सर मैं चाहूंगा लास्ट में जो हमारे यंग इंजीनियर्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए अगर आप, वैसे तो आपने बहुत सारी बातें बहुत सारी चीजें आपने बताई, तो कोई मैसेज उन्हें देना चाहेंगे या उनके लिए कुछ गुरु मंत्र आप देना चाहेंगे तो प्लीज सर जरूर उन्हें दीजिए। आई थिंक मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो भी यंग प्रोफेशनल्स हैं, देखिए सबसे एक तो ये कि भाई वो जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें तो उनका जो नॉलेज है वो फ्रेश होता है उस समय, ठीक है ना? तो अगर वो कुछ नया नहीं पढ़ पाए तो एटलीस्ट जो पढ़ के आए हैं उसी को पढ़ना कंटिन्यू रखें। मे बी के फॉर 6 मंथ और 1 ईयर अपने पहले या दूसरे साल में, तो उससे क्या होगा कि जो भी स्टडी उन्होंने की है पिछले 4 साल में उसको थोड़ा वो रिलेट करने में उनको हेल्पफुल होगा, और वो थोड़ा सा और बेटर टेक्निकल आउटपुट देने की कंडीशंस में अपने को सोच पाएंगे। इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल आल्सो, मैं ये नहीं कहता कि हमेशा हर एक को मिलेगा, क्योंकि हमारा जो एकेडमिक जो सिलेबस है वो कई बार हमारी इंडस्ट्रीज की जो रिक्वायरमेंट होती है जिसमें जाके वो जॉब करते हैं वो बहुत ज्यादा रिलेट नहीं होता, बट कंसेप्टुअल लेवल पे चीजें मिल जाती हैं, इतना भी ज्यादा अनरिलेटेड नहीं है। तो वो उन चीजों को थोड़ा सा वो रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो पढ़ के आए सिर्फ उसी को पढ़े, कोई नया भी एकदम से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उससे उनका उनको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगेगा जब वो जॉब करेंगे, ये भाई हम ये कर रहे हैं, तो भले ही वो रेलिवेंट ना हो, लेकिन उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि हम जो पढ़ के आए हैं अब हम उसको रिलेट कर रहे हैं, तो ये चीजें हमें मिल रही है।
तो आई थिंक ये रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज पे उन्हें काम करना है और सीखना ही है। उस स्टेज पे उन्हें मैं समझ रहा हूँ कि 8 या 10 साल का करियर का वो नहीं सोच सकते। वो अपना 3 साल का एक ओरिजिन बनाएँ और 3 साल के ओरिजिन में उन्हें सीखना ही है। जिस भी एक्टिविटी को करना है, दे शुड बी एबल टू डू दैट एक्टिविटी देमसेल्फ। ये पर्सनल उनको लेना पड़ेगा कि कोई अगर फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में कर रहा है, देन ही शुड लर्न हाउ टू ऑपरेट द मशीन। वो मेंटेनेंस में कर रहा है, देन ही शुड डू मेंटेनेंस बाय हिज हैंड ओनली। तो वो 3 साल 4 साल का जो पीरियड है, जब वो ऐसा कर पाएँगे तो उनको कॉन्फिडेंस आएगा, अगर उनको ऑपरेशंस में रहना है तो, है ना? अगर उनको जाना है मार्केटिंग साइड में चले जाना है साल भर के बाद, तो देखिए मार्केटिंग में भी जाके मार्केटिंग के जो बेसिक चीज़ें करनी तो वहाँ भी वही पड़ेंगी। वहाँ भी को फर्स्ट डे से तो कोई ऑफ़िस नहीं दे देगा, है ना? वहाँ भी आपको कस्टमर के पास जाना होगा, मार्केट रिसर्च करनी होगी, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस करना होगा। आपकी टेक्निकल नॉलेज के बेसिस पे इवैल्यूएशन की लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बनेगी। जब आप टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं और एमबीए कर रहे हैं, तो एज़ ए कंपनी मेरी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि आप जो हैं, मेरे को उस प्रोडक्ट का टेक्निकल नॉलेज भी देंगे। तो वहाँ भी चैलेंजेस कम नहीं आएँगे, वेदर यू गो इन मार्केटिंग। आप किसी भी सेक्शन में जाएँ, वहाँ की बेसिक चीज़ें करने से आपको ये समझ में आएगा कि उन बेसिक चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने की कितनी ज़रूरत है। वही फाउंडेशंस को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। वो आपको अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कब करेंगे? आप फ्यूचर में अगर एक लीडरशिप रोल में जा रहे हैं, तो फाउंडेशन आज बनानी शुरू करेंगे। तो आपको वीकनेस पता होनी चाहिए कि इस लेवल पे ये वीकनेस होती हैं। तभी आप उस लेवल पे जाके कुछ फ्रेम भी कर पाएँगे, मे बी आफ्टर 10 इयर्स कि भई ये पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, ये वीकनेस रहती हैं। तो आपको इनिशियल स्टेजेस पे आई थिंक हैंड ऑन एक्सपीरियंस जितना अपना बढ़ा सकें, और जो भी स्टडी करके आए हैं, उस स्टडी को रिलेट करें अपने फील्ड से। तो आई थिंक फॉर 3 ईयर और 4 ईयर ओरिजिन अगर इतना रखते हैं, अगर इंडस्ट्री में ही रहना है, तो इस पॉलिसी से काम करें। अगर उनको कुछ फर्दर एमटेक के लिए या एमबीए के लिए एफर्ट करना है, तो वो फिर एक अलग कैटेगरी हो जाती है। उसके लिए मैं सलाह ये देना चाहूँगा कि अगर ये टारगेट है, तो डू नॉट कम इन द जॉब। सीधा कर लो, कंटिन्यू मतलब नहीं, 1 साल या कंटिन्यू कर 2 लो। साल एफर्ट करें एक और दो साल वहाँ से उधर उधर कर लें। दोनों तरफ करेंगे तो ना इधर जस्टिस कर पाएँगे, ना उधर कर पाएँगे। मतलब एमबीए करनी है, एमटेक करना है, तो 1-2 साल के एक्सपीरियंस में कर लो, ज्यादा 3, 4, हाँ, 5 साल का वेट मत करो। कोई कोई लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, 2 साल बाद जॉब शुरू हो जाएगी, 3 साल बाद हो जाएगी। टेक्निक क्वालिफ़ाइड आदमी है, जॉब अवेलेबल्स है, कहीं कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ये सोच के ना करें कि फिर जॉब नहीं मिलेगी। कि जॉब ले लें, रात में 3 घंटे पढ़ेंगे, 4 घंटे पढ़ेंगे, दैट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम। मतलब ये भी है कि कंटिन्यू कर लें, जैसे ये भी मेरा भी यही सोच है कि मुझे भी लगता है कि 1 साल खत्म कर लो, एमबीए करना है, यस, एमटेक करना है यार, कंटिन्यू कर लो अपनी कंटिन्यू। ग्रेजुएशन के बाद, तो गैप ठीक है। कई बार जैसे एमबीए वगैरह करने में गैप फायदेमंद रहता है, लेकिन होता क्या है कि जब बंदा कहता है मैं गैप लूंगा, तो वो फिर गैप 90% लोग कह 95% कह लो कि 98 भी कह सकते हो, वो वापस ही नहीं आते, वो जॉब में ऐसे वापस मजा आ जाता है नहीं, उन्हें, वो नहीं कर बिल्कुल, वो पाते आ नहीं स्टडी, पाते हैं और फिर होता क्या है कि पढ़ने की एक हैबिट जो है ना, वो छूट जाती है। छूट जाती है। देखिए 1 साल तक आज की डेट में अगर हम और आप लोग पढ़ना चाहें, मे बी कि शायद आप पढ़ पाते होंगे, लेकिन हम लोग अगर पढ़ें तो हमें 1 घंटे में, आधा घंटे में नींद आ जाएगी, क्योंकि वो जी हैबिट हमारी छूट चुकी है। जी तो इसमें क्या होता है ना कि अभी कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको कंटिन्यूटी में क्लियर करना है, तो मैं समझ 8 से 10 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए ना। उसको अच्छे तरीके से करें, अच्छे कॉलेज में मिल जाएगा, अच्छी रैंकिंग में मिल जाएगा। तो अगर आप सिर्फ 1.5 या 2 घंटे कर रहे हैं, तो आप स्ट्रेच भी कर रहे हैं अपने आप को, ना जॉब से जस्टिस कर रहे हैं, ना उसकी पढ़ाई के साथ जस्टिस कर रहे हैं। तो जी 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 जी, बहुत आपने जबरदस्त बात की सर। और एक बात ये भी मैं सोचता हूँ कि अपनी जो ट्रेनिंग जो है, अपनी कॉम्पिटेंस की जिम्मेदारी खुद लें, कंपनी पर डिपेंड ना रहें कि कंपनी यस, आपको नहीं करे, जैसे कंपनी आपने पे कहा। डिपेंड ना रहें, कहीं छोटी कंपनी में करें, बड़ी में करें, कभी कंपनी किसी और पे डिपेंड ना रहें। कहने का सीधा-सीधा मतलब है, अपनी कॉम्पिटेंसी आपको खुद डेवलप करनी है। जो जी लर्निंग के लिए ज़रूरत है, छुट्टी मिल जाती है इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रीज़ इज़ डेफिनिटली वाइज़ एनफ और उतना लिबरल भी है, कोई भी मना नहीं करते। और सर भी नहीं भी मिलते तो सर सब मास्टरी ऐसा प्लेटफॉर्म है, तो जो कि हाँ, इवनिंग में यस, यस, जिनके यस, क्लासेस यस, चलती हैं ऑन डिमांड वो है, कर मतलब सकते अभी हैं। तो इतना रिसोर्सेज अवेलेबल है कि अगर आपको लर्न करना है तो आपको गुरु मिल जाएगा, आपको मतलब चैनल्स मिल जाएंगे। अब वो चैनल्स में। बात, अब वो चीज नहीं है कि आपको छुट्टी लेनी ही पड़ेगी, ऐसा जरूरी भी नहीं है। तो अब देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म विच इज अवेलेबल, बट ये कि आप में वो उत्साह होना चाहिए, सीखने की तमन्ना होनी चाहिए और सीखने की चाह होनी चाहिए। करेक्ट। जी सर, आज आपने इतना महत्वपूर्ण अपना समय दिया, तो फिर से मैं एक बार जो हमारे व्यूअर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनसे बोलूंगा कि एक बार आप इसको लाइक कर कीजिए जरूर, और जो है हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। इसको शेयर कीजिए, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे शेयर कीजिए, जो प्लानट बनना चाहते हैं, लीडरशिप रोल में जाना चाहते हैं,
या जो चाहते हैं अपनी लाइफ में करियर में आगे बढ़ना, क्योंकि देखो एक्सपर्ट टॉक सीरीज हम लेके आए हैं, बहुत मेहनत लगती है, टाइम लगता है, तो सर ने भी अपना समय दिया, उनका भी एक वक्त की कीमत है, हर वक्त की कीमत है, बट उन्होंने इसलिए दिया कि आप लोग जो है, जो व्यूअर्स है, वॉच कर रहे हैं, मेंबर्स हैं, ताकि लर्न कर सकें। हम भी एफर्ट्स कर रहे थे ताकि उनकी जो लर्निंग है, एक्सपर्ट की लर्निंग हम ला सकें और आपके सामने उनकी लर्निंग शेयर कर सकें। तो आप जरूर इसको नोट्स भी बनाइए, मुझे अच्छी लिखी है, क्या अच्छा लगा है कमेंट में टाइप कीजिए, और बहुत आप वैसी वीडियो शेयर करते हैं, है ना, तो भाई इस तरह की वीडियो भी आप शेयर कीजिए, ताकि किसी का भला हो, किसी की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो, राइट। कभी कभी कोई ना कोई बात ऐसी हमें अच्छी पसंद आ जाती है, या हमारा जीवन भी चेंज कर देती है, कई बार ऐसे भी हम देखा गया है। तो जरूर उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल नोटिफिकेशन जो है जरूर ऑन कर दीजिए, या उसको लाइक कीजिए, ताकि अगली बार जब हमारी कोई भी इस तरह की वीडियो आए तो आपको जो है नोटिफाई हो जाए और आपको पता लग जाए। तो सर थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप एक्सपर्ट सीरीज में आए, अपना समय दिया, आपने टाइम दिया, और जो है आपने अपनी दिल की बात आपने शेयर करी, तो होपफुली ये काफी हमारे मेंबर्स को, वर्किंग प्रोफेशनल को समझ में आई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ वो इसको फॉलो करेंगे, और वो भी एक जो है करियर में आगे बढ़े और लीडरशिप रोल पर पहुंच सकें। सर अगेन थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर, मिलेंगे कभी, है ना? सर जरूर मुलाकात होगी सर, और आई वुड लव टू श्योर मीट यू। श्योर 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 सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक आपने यू। इतना समय दिया।